Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the chapter Biotechnology Principles and Processes. In our last video, we have discussed the definition of biotechnology, the conventional definition of biotechnology. And what was the conventional definition of biotechnology? It is that the use of the organisms or the enzymes or the products from itself for the use of the human welfare. That is the definition of conventional definition of biotechnology. Now the modern view of biotechnology, what is the modern definition? It depends on GMO. So what is the meaning of GMO? GMO means genetically modified organisms. In the conventional view, we are using the product and the enzymes from that organisms, but here we are modified the whole organism. हम उस पूरे ऑर्गेनिज्म को ही मॉडिफाई कर रहे हैं और उससे फिर हम जो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं या वी कैन यूज़ दैट ऑर्गेनिज्म एज द मीन्स आर एक्सपेरिमेंट्स और फॉर आर प्रोडक्ट्स, जो भी हमें लेना है या उसके अंदर ही हम वो चेंजेस कर देंगे. सो दैट इज़ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सो हाउ वी कैन मॉडिफाई दिस by the use of the rDNA technology. rDNA technology. And what is the rDNA technology? rDNA means the recombinant DNA technology. What is the meaning of recombinant? Recombinant means recombine. Suppose if we want to increase the protein content of the milk, simply the milk is there and if the protein amount is required, then we add the some protein substances inside it. जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो मिल्क के अंदर कुछ प्रोटीन मिक्स करते हैं ताकि जो मिल्क प्रोटीन है दैट इंक्रीज, मिल्क प्रोटीन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाए. बट इफ़ वी हैव द मीन्स जीन, अगर ऐसा जीन है जो प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज़ कर देता है, तो अगर हम वो जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. सपोज वी हैव द नॉर्मल काउ दैट इज गिविंग द मिल्क एंड इन दिस मिल्क द प्रोटीन कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट है वो क्या है, लेस है. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो अगर हम एक डीएनए ले लें, उस डीएनए के अंदर वो वाले जीन फाइंड आउट किए जो जीन क्या करेंगे, प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करेंगे. ओके, सो व्हाट द साइंटिस्ट डन, द साइंटिस्ट सेलेक्टेड द मीन्स द गुड वैरायटी ऑफ द काउ, और जो जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था, और वो काउ की वैरायटीज़ में उन्होंने जीन इंट्रोड्यूस किया या हाइब्रिड काउ बनाई जिसमें मिल्क कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो गया. सो साइंटिस्ट दे इंक्रीज द मीन्स प्रोटीन रिच मिल्क. सो द प्रोटीन रिच काउ, जिसके अंदर प्रोटीन रिच मिल्क जिसके अंदर होगा, दैट काउ, जो काउ है दैट इज प्रोड्यूस्ड. तो बाय दिस मेथड द ऑर्गेनिज्म, जो काउ है वो ही मॉडिफाई हो गया. सो दैट इज नोन एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms. So another methods are also we using in the rDNA technology, like the in vitro fertilization. In vitro fertilization. Normally in case of human being,
फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। जो ये फेलोपियन ट्यूब होगी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, इन द फेलोपियन ट्यूब हेयर। बट इन द सम कपल्स इफ there are the some defects in their reproductive system, there are the some problem, then what we have to do, we can inject the sperm or we can collect the egg from the ovary and the sperm from the male, and their fertilization takes place in a test tube. टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा and the baby that give rise is known as test tube baby. So this is also possible due to the rDNA technology. तो हम बहुत सारे जो applications हैं, means both the chapters biotechnology principles and processes and the application, both the chapters are the application based. Firstly, we will understand the concept and then we apply these concept in whole the chapter. तो in the starting the introduction, और उस introduction को अगर आप समझ लोगे then you can clear all the concepts. So with the use of biotechnology we can make the DNA vaccines. जो DNA से वैक्सीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं. We can synthesize a gene, means हम कोई भी जीन synthesize कर सकते हैं. Suppose in our pancreas the insulin is made. What is insulin? That is a hormone which balance the blood sugar level. Blood sugar level जो को कंट्रोल करता है ये. So in our pancreas there are the some insulin making genes are present. Which genes are present? Insulin making gene. अगर हम ये जीन इसको निकालें और इस जीन को हम क्या करेंगे, अगर हम इंजेक्ट करें, सपोज बैक्टीरिया के अंदर अगर हम इसको इंजेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर इसकी कॉपीज़ बन जाएंगी एंड बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी और उस जीन से हम इंसुलिन बना के बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं, या वो जीन हम पैनक्रियाज के अंदर डाल दें जिससे कि जो इंसुलिन ह्यूमन बॉडी जो है वो बनाने लग जाए. सो वी कैन मेक द जीन सिंथेसिस. जीन हम बना सकते हैं, उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं और उसको इंजेक्ट कर सकते हैं. कोई भी जीन हम सिंथेसाइज कर सकते हैं एंड इट्स यूज़, और उसका यूज़ कर सकते हैं. जीन डिफेक्ट्स, कोई भी जीन डिफेक्ट है उसको हम ठीक कर सकते हैं बाय द rDNA टेक्नोलॉजी. इफ़ द नॉन फंक्शनल जीन इज़ देयर तो उसको हम सुप्रेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मीन्स यू कैन से द GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और द मॉडर्न व्यू, जो मॉडर्न व्यू है मीन्स बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन का. So conventional view we have discussed, the modern view also. So in the conventional view we are using the products and the enzymes from the organisms, but here we are using the whole organism and we are recombining that organism, and that is known as the genetically modified organisms. After that, the standard definition of biotechnology. The standard definition, that is the mixing of the conventional view plus the modern view. दोनों को मिला के हमने जो डेफिनेशन बनाई है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एंड इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम्स. आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो इट वाज गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसने जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी.
So what is the standard definition of biotechnology given by European Federation of Biotechnology? So it is the integration of natural science. Integration means कि natural science को, biology को, life science को भी include करके, because we are applying it on the living organisms. With organisms, किसके साथ? Organisms के साथ, उनकी सेल्स के साथ, या उनसे जो मिले हुए हैं एंजाइम्स उनसे, या उनके पार्ट से, ऑफ मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलिकुलर एनालॉग्स? मोलिकुलर एनालॉग्स मीन्स इन आवर बॉडी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, उनके जैसे भी मॉलिक्यूल्स बना के हम एक नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं. या अगर हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं बाय मेकिंग द मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज फॉर द ह्यूमन बींग्स. So that is the standard definition, and if it is asked in your exam then you have to write the same, means it is in the inverted commas, that integration of natural science with organisms. Organisms के साथ suppose अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पेनक्रियाज से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंसुलिन मेकिंग जीन, like that is the insulin making gene. Okay, सो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इस जीन को फिर हम, एक प्लाज्मिड होगा बैक्टीरिया का, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. सो बायोटेक्नोलॉजी दैट इज ब्रेकिंग द बाउंड्रीज बिकॉज वी आर टेकिंग द bacteria, the prokaryote and the eukaryote, and the most advanced eukaryote, that is the mammalia. So firstly we have to means break that gene, या उस DNA को हमें सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा with the help of the restriction enzyme. और सेम कट यहाँ पर लगेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ भी कट लगाएगा, दोनों से हम ट्रीट करके इस जो DNA है, इस जीन को हम इसके अंदर इंजेक्ट कर लेंगे प्लाज्मिड के अंदर. एंड दिस प्लाज्मिड व्हेन इट डिवाइड, इस प्लाज्मिड के अंदर भी उस जीन की क्या हो जाएंगी, बहुत सारी कॉपीज़ हो जाएंगी. और व्हेन दिस जीन फॉलो द सेंट्रल डोगमा कि उससे mRNA बनेगा, mRNA से बनेगा प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज दैट द इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि जो इंसुलिन है दैट इज द प्रोटीन हार्मोन. तो वी आर यूजिंग द नेचुरल साइंस विद ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनकी सेल्स के साथ, उनसे हम क्या बना सकते हैं, एंजाइम पार्ट्स देयर ऑफ मोलिकुलर एनालॉग. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मोलिकुलर एनालॉग, कि हम अपनी बॉडी में किस तरह से मोलिकुलर एनालॉग हम बना सकते हैं. जस्ट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम जो है वो बन रहा है और उस एंजाइम की वजह से कुछ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और वो प्रोडक्ट हमारे लिए टॉक्सिक है. तो हम क्या करेंगे, उसका कोई मोलिकुलर एनालॉग बनाएंगे. कैसे? सपोज दैट इज ये एक सबस्ट्रेट है और इसके साथ मीन्स आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि ये एक एंजाइम है, और इस एंजाइम को एक्टिव कैसे बनेगा ये, जब इसके जैसा कोई मीन्स मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा. ओके, बट when this molecule bind with this enzyme then there is the formation of the toxic substance, और वो सब्सटेंस जो है हमारे लिए हार्मफुल होगा. सो हम क्या करेंगे, इसके जैसा ही कोई और स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज नोन एज द मोलिकुलर एनालॉग. और इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें मोलिकुलर एनालॉग की, सो देन देयर विल बी द कॉम्पिटिशन एंड दिस विल बाइंड, ये इसके साथ बाइंड करेगा.
सो दिस इज अनेबल टू बाइंड, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, नॉन टॉक्सिक। या ऐसा हो सकता है ये इसकी बाइंडिंग को रोक दे, और अगर बाइंडिंग से रोकेगा तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर वो एंजाइम नहीं बना तो उस एंजाइम की वजह से वो बैक्टीरियल प्रोटीन, सपोज हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो बैक्टीरियल प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर वो बैक्टीरियल प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। मीन्स वी कैन स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स, उन जीन्स को एक्सप्रेस होने से हम रोक सकते हैं, और बाय मेकिंग द मोलिकुलर एनालॉग। लैक ऑफ प्रॉन में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक रिप्रेसर जीन होता है, और उस रिप्रेसर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, और वो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड हो जाता है, जिस वजह से आगे फर्दर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, दीज आर नॉट फॉर्म्ड। ओके, सो इफ any gene is there, that gene can make that type of enzyme, that type of product which can stop that process. So with the use of biotechnology we can make the molecular analogues also, we can cure the gene defects also. जीन डिफेक्ट हम कैसे क्योर करेंगे वो भी हम एक टॉपिक में आगे फर्दर पढ़ेंगे। ओके, सो दैट इज द you can say the standard definition of biotechnology. So here the definition of biotechnology that is complete. Now in the next topic we will discuss the another one. Thank you.